Last year, Kashmir had a population of 140,000 Hindus. In the last 6 months, more than 1 lakh Hindus have fled their homes, many with just their clothes on their backs. Several pockets of Hindu population like Habba Kadal, Renawari and Karan Nagar have become ghost towns. There were numerous pressures that forced these Hindus to leave. Children had no schools to go to. Colleges were closed. Weeks of curfew had converted homes into prisons, often without electricity, water and food. But most of all, it was the tension of being a minority in an increasingly fanatical atmosphere, where the very air they breathed was laden with violence and fear. They have left secure jobs, sometimes of 20 years, established businesses running for generations, and even properties and orchards to a blank, uncertain future with marginal help from the government. Why, they ask, should we be refugees in our own country? हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए हैं. Suddenly, her mother, who was sitting next to her, began to weep. दुखी इसलिए है कि इसकी 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटियां हैं. मैं भी इसकी एक बेटी हूँ. ये इसलिए रोती है. हम क्या करेंगे? Less than 3 years ago, these people led normal, average lives in Kashmir. In the last 6 months, that normal world is now sadly part of their good old days nostalgia. तुम्हें लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ. मन करता है वापस जाने का? हाँ. क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं. क्या कहते हैं, कभी नहीं जाएंगे वहाँ? ना. तो फिर क्या कहते हैं, कहाँ रहेंगे? यही. तो यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं. Large-scale migration began when the release of Rubia in exchange for 5 militants led to mass hysteria in most parts of the valley. The next phase came in the 3rd week of January when huge processions were taken out in the valley, processions in which many Hindus were forced to march in front. हम मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, उनके नारे थे कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे. ये उनके क्या नारे लगाए आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफा. Hopelessly outnumbered, most of the 140,000 Hindus in the valley of a population of more than 30 lakh Muslims panicked and fled. More than 90,000 of them sought refuge in Jammu, Udhampur, Nagrota and Kathua. Another 6,000 moved to Delhi. More than 2,006 reached Amritsar and other parts of Punjab. Yet another couple of thousand scattered in various other directions. The government has so far made only marginal arrangements for their rations. A large majority of them have not found accommodation in the limited number of camps set up by the government. मुझे पहले भी थ्रेटनिंग आ रही. अब आप वापस जाएंगे कभी? नहीं मैं नहीं जा सकता. तो क्या करेंगे आगे? क्योंकि यहाँ अगर वहाँ से वो ऑफिसर ही है, उससे बेहतर है यहाँ गली कोचों में भीख मांगना और अपने यार को पालना, आज़ादी से रहना, बगैर किसी थ्रेट के यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहना. सारा परिवार आ गया? सारा परिवार. कोई वहाँ नहीं बचा? नहीं महाराज, नहीं, उधर कोई नहीं. क्यों चले आए आप लोग? जब वहाँ पर ऐसे सब लोग आ गए तो हम भी आ गए. क्या कहेंगे उधर? The migrants have had to leave behind everything. Their bank accounts and valuables kept in lockers are practically frozen. There are hectic distress sales of ornaments by the women in order to subsist. In Jammu, land prices and house rents have shot up all of a sudden. जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते हैं इधर की कमाई है इधर ही रहेगी, तुम खाली आ जाओ. हम खाली 3 कपड़े में आए वापस. मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग? नहीं हो सकता. क्यों, ऐसा क्या? उन्होंने वो किया है ऐसा प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे. इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मतलब मुफ्त में मिलेगी. People who are doing well now find themselves looking for employment. We met a school teacher from Shopian who has started learning how to sew in order to earn a living.
अगर हमें कोई सिलाई का काम मिल जाए तो हम कर लेंगे, कोई कढ़ाई या सिलाई या टाइप शर्ट हैंड तो आता नहीं, टाइप तो आता है। तो मैं वो अगर किसी जगह हमें वो जॉब मिल जाए तो मैं कर लूँगी। अब पढ़ाई तो आपकी रुक गई होगी। हाँ। अब क्या होगा? अब पता नहीं आगे क्या करेंगे। अब क्या कहते हैं पिताजी? पिताजी तो कहते हैं अब ऐसे ही रहना है। Kashmiris in the valley have now begun to feel the economic pinch. In contrast with the prolonged bunds witnessed earlier, there is now an urge to open shops even in the brief periods of relaxation of curfew. हम देखेंगे कश्मीर को, हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों छोड़ेंगे कश्मीर को? वो हमारा खून है, हमारी मातृभूमि है। क्यों छोड़ेंगे? जो वहाँ पर पाकिस्तान मांगे हम उसको उठा के पाकिस्तान में फेंक देंगे, मगर पाकिस्तान वहाँ पर बनने नहीं देंगे। The common crime of all the 1 lakh Hindu migrants from the Kashmir valley is that they are Indians, that they are not part of the revolt by a large mass of the Muslim population of Kashmir who are crying for secession. वहाँ के ऐसे से है कि जो भी भारत का नाम ले लेगा उसके लिए वहाँ गोली है। हिंदू को बुरी नज़र से ज़्यादा देख रहे हैं, सिख को भी देखते हैं मगर कम। वहाँ पे डिसाइड कि जिस घर में हिंदुओं को जो भी टेनेंट्स रखेगा वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या नाम डिसाइड कि व्हेन माय पेरेंट्स वेंट डिसाइड कि आप क्या यहाँ करने आ गए हो, खुद भी मरोगे हमें भी मरवाओगे। हिंदू जो भी है वो हिंदुस्तानी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि भाई पाकिस्तान है या आज़ादी है। अगर आज़ादी वहाँ हो भी जाए तो वो सारे हिंदुओं को क्रैश करेंगे, जैसे पाकिस्तान में वहाँ हिंदुओं का नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल, हिंदू को वो अपने जान से दुश्मन समझते हैं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, वो है। लेकिन दरअसल जो है इन द लॉन्ग रन जो है वो या तो उनको कन्वर्शन करेंगे या तो उनको मार डालेंगे। था एक क्लासिकल डांसर आई थी, सोनल मानसिंह थी मेरे ख्याल से। उनके साथ एक डांस का प्रोग्राम था जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब खूब नाचे। और उनसे उसके बाद प्रोग्राम के बाद पत्रकारों ने पूछा कि ये क्या कि कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो रही है, तो उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया। ये वो वक्त है जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया एजेंसियों की बराबर रिपोर्ट आ रही थी कि आपके यहाँ सीमा पार से घुसपैठ शुरू हो गई है। भेड़ जो कैटल है, जो गुज्जर इधर से उधर करते हैं, उनके पेटों से बांध कर जो है राइफल्स आ रही हैं। लेकिन वहाँ हमें इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया और हमें इस तरह का कोई वार्निंग नहीं दी गई कि अब आप पर कोई घास गिरने वाली है, आप अपनी जान बचा लीजिए, या आपकी कोई सुरक्षा के हमने कोई पुख्ता इंतज़ाम किए हैं, या इस मिलिटेंसी से लड़ने के लिए हम कोई कदम उठा रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं। और ये जो एक किलिंग है, ये धीरे धीरे इसका जो उन्माद है, ये एक धार्मिक उन्माद में परिवर्तन हुआ इसका, और ये धार्मिक उन्माद सड़कों पे फूट पड़ा। एक ज़माना ऐसा आया जनवरी फरवरी में, दिसंबर 1989 में, आपको याद होगा रुबैया सईद जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी अगवा हुई, उनका 12 दिसंबर जी। और उसके बाद सरकार ने उनके एवज में 5 आतंकवादियों को रिहा किया। वो मेरे ख्याल से, इसके बारे में चूंकि लिखता पढ़ता रहा हूँ, वो सबसे पहला ब्लो था इंडियन स्टेट को कश्मीर घाटी में, जब कश्मीरियों को लगा कि अब सरकार को, जब हमने घुटने टेकने के लिए कहा है, सरकार ने रेंगना चालू किया। और उसके बाद जो हज़ारों लाखों की संख्या में, मतलब एक वक्त हमने अपनी आंखों से करीब 7 लाख लोगों को कश्मीर की सड़क पर देखा है। उनमें काफ़ी लोग कफन बांधे खड़े थे और वो तरह तरह के नारे लगा रहे थे। कुछ नारे मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़रूरी है यहाँ कहना। दिल में रखो अल्लाह का खौफ, हाथ में रखो क्लैशनकॉफ। हम क्या चाहते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा, ला शर्किया ला गर्बिया इस्लामिया इस्लामिया, विच मीन्स ईस्ट और वेस्ट, इस्लाम इज़ बेस्ट। और लगातार कश्मीरी पंडित किलिंग होती रही। पहले हमको ये लगा कि ये सिर्फ प्रोमिनेंट कश्मीरीज की हत्या हो रही, क्योंकि टीकालाल टपलू एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका संबंध था। उसके बाद जज नीलकंठ गंज जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी, उनकी हत्या हुई। लेकिन धीरे धीरे ये हत्याओं की संख्या बढ़ती गई और आम लोगों को, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कवि, अनंतनाग में सर्वानंद कौल प्रेमी थे, उनके बेटे और उनको अगवा किया गया। वो उस तरह के लोग वो थे जिनका पूरा सद्भावना में, कम्युनल हार्मनी में विश्वास था। उनके घर पे एक रेयर मैन्युस्क्रिप्ट थी कुरान की, उन्होंने भगवद गीता का तर्जुमा अंग्रेजी में कश्मीरी में किया था।
तो उनको घर से ले जाके उनको फांसी से लटका दिया गया, उनको गोलियों से दाग दिया गया, सिगरेट के बिट लगा के उनका वो स्टब्स लगा के टॉर्चर किया गया। और इसका कल्मिनेशन हुआ 19 जनवरी 1990 को। अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार कल्पना कीजिए, 19 जनवरी 1990, ये आज से 30 साल पुरानी बात है, जब कोई व्हाट्सएप, कोई सोशल मीडिया, कोई फेसबुक, कोई ट्विटर कुछ नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है आपके पास। इनफैक्ट लैंडलाइन डेंसिटी भी जो ये उस ज़माने में बहुत कम लोगों के पास घर पे फ़ोन हुआ करता था, लैंडलाइन हुआ करता था। और कश्मीर में हार्श विंटर है, जब माइनस में टेम्परेचर जाता है और 6-7 बजे सब लोग अपने घर में बैठ जाते हैं और 9 बजे तक सब उस हार्श विंटर में सो जाते हैं। और अचानक पूरे कश्मीर में, न कि एक गली मोहल्ले स्ट्रीट में, पूरे कश्मीर में एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से लोगों ने मस्जिदों से नारे लगाने शुरू किए। वो लोग सड़क पे आए, उन्होंने कई जगह पंडितों के घरों पे पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके, उनके पत्थर चलाए और एक